Hello and welcome to another episode of The Brown Perspective. Joining me today is an economics major at LUMS, the CEO and co-founder of Fitur Travel and Tours, Sarim Mushtaq Saab. How are you? Welcome to the podcast. Hello, Faisal. क्या हाल चाल है? I'm very fine, doing all fine, and Ramadan is going too well. What about you? Thank you for asking. I'm also good. So for all the viewers, Sarim has his travels and tours company, which we will dive right into very soon. Uske saath, I actually met him on a trip to Skardu in March last year, and since then, we've been corresponding, we've been exchanging ideas, and he was kind enough to take out the time for this podcast. So we're very happy to have you, Sarim. Before we get into the whole entrepreneur aspect of things, I'd like to ask you, how did you develop an interest for traveling? How did you sort of start? What are your earliest memories of traveling in Pakistan? So, Faisal, traveling, has a very big meaning in my life. I have been traveling since, जब से मेरी याददाश्त संभाली है ना उस टाइम से मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करूँ माई फैमिली ट्रेवल्स अ लॉट साल में 2 3 4 ट्रिप्स फैमिली के ज़रूर होते हैं इसी तरह रिलेटिव्स के साथ मेरे कजन्स के साथ आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट माय फर्स्ट जिसको कहते हैं ना आई ओपनर वाज व्हेन इन 2013 व्हेन माय पेरेंट्स वेंट टू यू नो हज करने गए वो एंड बैक होम आई वाज रियली बोर्ड एंड आई प्लीडेड माय अंकल कि यार मुझे ना अपने साथ लेके जाएं आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो मुझे भी लेके जाएं दैट ट्रिप टू नारायण बैक इन 2013 वाज लाइक एन आई ओपनर फॉर मी उसके बाद बस मेरे हर जगह मुझे ट्रैवलिंग 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 एडवेंचर कैंपिंग यही चीजें याद आती थी सो आई रिमेम्बर कि मेरे मामू काफी ज्यादा ट्रैवलिंग का पैशन रखते थे मैं बस उन्हीं के फुटस्टेप्स पे चल रहा हूँ उन्हीं की तरह उन दोस्तों के साथ पहले जाना शुरू हुआ फिर उनके साथ जाना शुरू हुआ और फिर अपना ट्रैवलिंग मैंने सोलो भी ट्रैवल किया काफी ज्यादा तो दिस इज समहाउ कि मेरे ये माइंड के अंदर इंग्रेन्ड हो गया कि मैंने ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही सब कुछ करना है Say. Also continuing in a very similar vein, tell us about other aspects of your life growing up. Where did you grow up? I believe you're from Faisalabad. So where did you grow up? How were you at school? How were you in your academics? And how did all of that tie into the traveling wala passion? Because for a lot of people, traveling is sort of an afterthought. It's something that you do once a year or maybe twice a year. Not a lot of people think of it as such a passion project. So I'd like to know how the rest of the things in your life also impacted the development, the genesis of this passion. Oh, so going back to your question, हुआ ये था कि I have my parents are from Faisalabad, but I was born in Lahore. I was born and bred in Lahore, and I have lived in Lahore since my childhood. And also the you are very 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 accurate with the thing कि ये एक after होता है when people get settled they start traveling and all that but मेरे लिए ये था कि I always look forward to the family trips when I was a child when I was a teenager I remember कि I used to study a lot I was very good in academics very good in academics the top of the top classes but the thing was कि apart from the academics, I always look forward towards the traveling aspect, towards the family trips. I always used to be in the family conversations, जहाँ trips plan हो रहे हैं और ये सब कुछ कि यार इस बार यहाँ जाएंगे इस बार ये करेंगे इतने days का होगा ये सब so जब आपकी फैमिली के अंदर एक इस तरह की नर्चरिंग हो रही हो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट तो इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर मी टू डेवलप अ पैशन डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन for traveling and the adventure which I ultimately uh, turned in a business for me. All right, well, that's all very impressive. Of course, you came to LUMS at the same time as I did in 2020 with the pandemic wala batch. I still, matlab, we can do
we can do a separate podcast on how the pandemic affected our batch in particular. But tell me about your journey to LUMS. Tell me about how the idea came about. Did you always want to pursue a degree in economics? कि किस तरह ये किस तरह हुआ? Okay, so I always wanted to be an engineer. Um, uh, when I was a child, I thought कि यार engineering करूँगा कुछ ऐसी चीजें क्योंकि imagination होती है कि आपको building ये इस तरह की सब चीजें. But when I was doing my intermediate from Punjab colleges, तो वहां मुझे आके हुआ कि नहीं यार ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंसेस वगैरह है ना, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज टू मच ऑफ प्रेशर और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. सो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बट एफएससी में आके मुझे रियलाइज है कि आई वांट टू डू समथिंग रिलेटिवली लेस चैलेंजिंग, और मुझे किसी और चीजों के ऊपर ना अपने फोकस करना है. सो दिस वाज द टाइम जब मैंने uh, एक सेकंड, क्या पूछा क्या था तुमने? ये कट कर ये देना, मैंने नहीं नहीं मेरे दिमाग से मैंने निकल यही गया. पूछा था कि मैंने क्या पूछा था मैंने ये पूछा था कि हाउ डिड गेटिंग इनटू लम्स वाला सारा प्रोसेस हैपन, जैसा वाज इट एन आइडिया हाँ शुरू हाँ से हाँ. ही या डिड इट इवॉल्व, किस्सा वो किस्सा नहीं. हुआ? ओके. सो व्हेन आई वाज इन माय 12th ग्रेड, उस टाइम जो रियलिटी हिट हुई कि मेरे लिए साइंसेज और इंजीनियरिंग वगैरह इट्स नॉट फॉर मी. तो मेरे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे लम्स है. सो आई वाज रियली एडमेंट कि यार अगर मुझे वगैरह करना है ना, तो आई हैव टू गो टू लम्स, वरना मुझे मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं ना कहीं और भेजेंगे. सो हम्म. मैंने लम्स का सारा क्राइटेरिया वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेकआउट किया है. आफ्टर दैट आई ओनली अप्लाइड टू लम्स, और वहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया, जिसकी वजह से आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि आई हैड द द अ गुड बैच, जहां जिन लोगों ने मेरे कंपनी को सपोर्ट भी किया स्टार्ट में. बिल्डिंग ट्रस्ट इन सर्विस इंडस्ट्री वेरी डिफिकल्ट. इन द वेरी हम्म. स्टार्ट आपको कोई लोग जानते नहीं होते, एंड ट्रस्टिंग समवन विद योर ट्रिप, जो आपका हार्ड एंड ट्रिप होता है, इट्स अ वेरी बिग डील फॉर स्टूडेंट्स. So यस. also the pandemic part was that the pandemic affected me in a very positive way. Literally, I had the time to think about a business. I was घर से बाहर तो जा ही नहीं सकते थे, तो घर के अंदर बैठ के आई थॉट कि यार क्या प्रोडक्टिव करना है. आई वाज ट्यूशन उससे पहले, बट वो भी पेंडेमिक में बंद हो गई थी, ऑनलाइन पढ़ा रहा था, तो उसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा था. सो आई हम्म. हैड दिस एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. आपको पता है हमारा वर्कलोड भी कोई इतना ज्यादा नहीं था ऑनलाइन सेमेस्टर वगैरह. आई हम्म. थॉट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दो हफ्ते के अंदर ही सब कुछ किया था. उस तरह स्टार्ट किया हम सारे का सारा. आई हैड ऑल दिस आइटनरीज प्लान्ड आउट, सारे वेंडर से बात हो रही है, ये सब चीजें. एंड इट इज अ मैटर ऑफ अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, जिसके अंदर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया. अच्छा अच्छा. आई कैन रिलेट टू दैट एज वेल. और मतलब आई सल्यूट योर गट्स to only apply at LUMS and to think it would happen, at such a time जिधर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार होगा क्या, हाँ. कुछ आगे नजर ही नहीं आ रहा था. In such a time, the fact that you pulled it off, I applaud your guts. So continuing in the in the business sense. So you're telling me that in 2020, in the pandemic, जब सब घर बैठे हुए थे, तो that actually gave you a much better opportunity to envision your business. So the pandemic actually helped Fitur come into being. ओके. सो दिस हैज अ लॉट ऑफ इसके अंदर ना और बहुत ज्यादा चीजें. आई रिमेम्बर कि फ्रेशमैन ईयर में We आई have a lot वाज. of time. आप सारी बातें बताएं. हाँ. तो फिर हुआ ये था कि फ्रेशमैन ईयर में आई वाज अ वेरी सोशल पर्सन इन लम्स. बट उसके अलावा भी ना आई हैड दिस सॉर्ट ऑफ फीलिंग कि यार मुझे ना कुछ और करना. आई एम नॉट कैशिंग लम्स हुए, जिसको कहते हैं ना, सही तरह मैं उसको यूज कर रहा. आई Hmm. नेवर हैड अ थॉट कि मुझे ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही कुछ बिजनेस करना है. बट आफ्टर द फ्रेशमैन ईयर एंडेड, तो जो समर ब्रेक आती है हमारे 3-4 महीने की, Hmm. I saw many of my batchmates, many of my friends doing different businesses. किसी ने thrift business start कर लिया, किसी ने
बाहर से कपड़े इंपोर्ट करके ब्रांडेड कपड़े यहाँ कोई सेल कर रहा था, किसी का कोई एनजीओ स्टार्ट हो रही थी, किसी का कुछ स्टार्ट हो रहा था, किसी का कोई बिजनेस था। तो आई ऑलवेज हैड दिस पिंचिंग थॉट इन एट द बैक ऑफ माय माइंड कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आई वाज अ वेरी केपेबल स्टूडेंट पहले, आई वाज अ वेरी क्या कहते हैं कि मैं ऑलराउंडर होता था, स्पोर्ट्स में भी Hmm. अच्छा, एकेडमिक में भी अच्छा। तो अब मैं यहाँ कुछ और नहीं कर रहा। आई Hmm. रिमेम्बर कि एक रात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इट वाज आई गेस द 15th ऑफ जुलाई Hmm. 2021। Yeah. देखिए, या तो एक रात में इस तरह बैठ के ना आई वाज मैं बहुत ज्यादा ना मेंटल प्रेशर में था कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, एंड आई हैड नो आइडिया कि मुझे करना क्या है। सो आई सॉ दिस वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि गो टुवर्ड्स पैशन। एक बहुत जेनेरिक सी वीडियो थी, एंड आई थॉट कि यार मेरे पास अगर कोई टैलेंट है ना पढ़ाई के अलावा या कुछ भी, और जिस चीज की मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जिस चीज में मैं अपने आप को कैपिटलाइज कर सकता हूँ, तो इट इज ट्रैवलिंग। आई नो ऑल द इचीज बिचीज ऑफ ट्रैवलिंग। 90% तो मुझे पहले ही पता है, तो इसके अंदर मुझे स्टार्ट होने में मसला नहीं होगा। सो दैट दैट नाइट आई रिमेम्बर कि उस रात ही बैठ के मैंने अपने फैमिली ग्रुप से मैसेज किए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज किया, हमारे ओरिएंटेशन वीक के ग्रुप्स होते हैं उसमें मैसेज किए, यार आई Hmm. एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ ट्रैवल कंपनी, ये कीवर्ड्स हैं, गिव मी अ गुड नेम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस पीपल वर सो सपोर्टिव कि उन्होंने उसी रात कमेंट्स भी किए, दे वर सो एक्साइटेड ये वो। एंड वो सारी जो वो जो ऑरा बना हुआ था, उसी रात ने अपने इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक हैंडल सब कुछ बना लिया। सो Hmm. इट वाज अ मैटर। और मैं अभी सोचता हूँ कि उस रात बैठ के मैं, वही रात अगर मैं उस थॉट को खत्म करने के लिए आई वुड हैव चोजन नेटफ्लिक्स एज माय फ्रेंड, नेटफ्लिक्स देख लेता, या हो सकता कोई टेनिस का मैच देख लेता, फेडरर को देख लेता, या कोई इस तरह कुछ भी कर लेता। तो खजर वो वो जो एक खत्म कर सकता था, वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए अच्छा किया कि आई वाज सो, मैंने कहा नहीं यार आज फोन साइड पे रखना है, बस आज Hmm. काम करना है लैपटॉप पे बैठ के। Hmm. और उस रात बैठ के मैं अगले दिन रात को उठा, एक दिन पूरा लैपटॉप पे बैठा रहा। तो बस इस तरह को स्टार्ट हुआ। आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद अल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। Hmm. अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ इसको किसी ना किसी तरह हेल्प करना है। Hmm. तो बस ये सब चीजें थी। एंड थैंक गॉड फॉर दैट नाइट बिकॉज अगर उस दिन ये आपको आइडिया ना आया होता तो वी एटलीस्ट आई पर्सनली वुड probably have missed out on one of the best trips of my life. So moving मतलब I'd like to ask you about वो वाली चीज कि you saw people around you doing a lot of things and that inspired you to pursue something of your own. Again, let's not talk about the pandemic but just generally because हमारे बैच के अंदर even myself for the longest time I felt extremely confused because you have all these expectations, you have all these preconceived notions of what being a student at LUMS would be like, and then when you come to LUMS it's just not happening, and you know you see कि यार हमने तो ये सुना था that if this happens, you know, you have this you know, flourishing social life, you're playing sports, you're doing everything you possibly can, and it's just so healthy and all of that. You come with all those expectations, and when you see what's actually happening, so it becomes very daunting. Up in your case, I'm sure, and a lot of people listening to us, I'm sure there are going to be a lot of people who are still who still sort of feel as if they're not, you know, utilizing their LUMS experience to the max. There would be a lot of people who're still finding their passion, who are still trying to sort of you know maneuver their way into you know just finding something that you know allows them to own something, allows them to feel grounded and to feel involved and included in everything. So for those people who are still looking for something that sort of that gives them their identity, what would be your advice to them? ओके, सो आई एम बीइंग वेरी कैंडिड अबाउट दिस। लम्स हैज अ वेरी उस तरह की परसेप्शन कि यहाँ बहुत फन होगा, यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे होंगे, उसके बाद हमारा जो कहते हैं कि एकेडमिक करियर भी सिक्योर्ड होगा, उसके अलावा आपके दोस्त भी बहुत अच्छे बनेंगे और ऑल दैट। Hmm. आई थिंक दिस इज ट्रू, एटलीस्ट आफ्टर द पेंडेमिक। यहाँ सिर्फ एक बंच ऑफ पीपल होते हैं, 20-25% ऑफ द पीपल हु आर यू नो
वेरी प्रोडक्टिव और जो इस तरह वाकई इंजॉय कर रहे होते हैं. उसके अलावा पीपल आर वेरी कंफ्यूज. दिस यू नो Hmm. I think social anxiety developed after the pandemic. People have started questioning themselves. People have started doubting themselves कि यार अब मैं क्या करूंगा, लोग कहाँ जा रहे हैं, दुनिया पूरी हिल गई, ये सब चीजें. तो लम्स के लिए ये और ऑल्सो गोइंग बैक टू क्वेश्चन कि व्हाट इज योर एडवाइस कि जो लोग अभी तक पैशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या करें. आई थिंक कि फॉर्चुनेटली फॉर मी देयर वाज अ पैशन इन माय लाइफ. आई बिलीव कि काफी लोगों के अंदर उस तरह पैशन नहीं होता. सम पीपल आर सो अलाइन टुवर्ड्स स्टडीज कि उन्होंने स्टडीज के अलावा कुछ जिंदगी में किया ही नहीं होता. आई थिंक दिस इज वेरी ट्रू. काफी लोग हैं जिनकी और कोई एक्टिविटीज कोकरियर एक्टिविटीज या अवेयरनेस नहीं होती. आई थिंक कि उनकी गलती नहीं है इसमें. उनकी उनका ब्रॉटअप इस तरह का हुआ होता है और हो सकता है वो पढ़ाई में इतने अच्छे हों कि दे वुड हैव सरपास्ड अस एनी डे. बट Yeah. एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो आइडिया है ना, एंटरप्रेन्योरशिप is not having a unique idea. It is Hmm. a very false. फेसबुक जैसे SpaceX जैसे 100 सालों में एक बार आते हैं. इट इज नॉट एवरी डे क्या प्रोडक्ट लॉन्च करो. आई थिंक इट इज हैविंग अ प्रोडक्ट or a service which has a demand in the market, and you just make your gap in it कि आप उसके अंदर अपनी जगह बना लो. उस 20% ऑफ द डिमांड के अंदर आप अपना 2% निकालो. आई थिंक दिस इज हाउ यू स्टार्ट अ बिजनेस. फॉर पीपल हु डू नॉट हैव अ पैशन, आई थिंक कि काफी लोगों के पास पैशन होगा भी, बट फॉर पीपल हु डू नॉट हैव अ पैशन आई वुड रियली सजेस्ट कि गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग बहुत, बट एट द एंड इट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. आप सब कुछ सीखते हो. यू आर योर ओन एम्प्लॉयर. आप जो काम आपने 10 लोगों से कराने होता है एट द स्टार्ट सब चीजें खुद कर रहे होते हो. आई रिमेंबर कि आई हैव अ फ्रेंड who owns a marketing agency in phase 6, और वो जो है वो यूएस में भी अब उसने ऑफिस खोला है. एंड Wow. आई वाज टॉकिंग टू रीद एंड आई वाज टॉकिंग मैंने स्टार्ट किस तरह किया. ही सॉर्ट के यार कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग से ना मैंने आपको पे स्टार्ट किया था. तो मैंने कहा यार मार्केटिंग तो और चीजें, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह सब चीजें आती हैं, तुमने इसमें किस तरह. कहते यार वही क्लाइंट से ना मुझे छोटी छोटी असाइनमेंट्स देना शुरू की विद स्पैन ऑफ टाइम. तो कहते मैं क्या करता था कि मैं वो चीजें सीखता था पहले. जिस तरह मुझे किसी क्लाइंट ने कहा कि यार इसका बिजनेस एनालाइज करके दिखाओ या इस तरह की सब चीजें, तो मैं पढ़ता था ये सब चीजें पहले मैं. Hmm. और कहता है उसकी वजह से आई एम अ मैन ऑफ ऑल ट्रेड्स. मैंने अपनी जब अपनी 60 लोगों की जो कंपनी खोली हुई है, आई नो ईच एंड एवरी स्किल माय एम्प्लॉइज हैव. तो आई थिंक कि Hmm. आप खुद अब जब चीजों में घुसना शुरू कर देते हो ना, तो आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर पीपल के यार, इजी फॉर यू जब आप खुद वो चीजें जान लो कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको. हाँ, Hmm. यही है. एंड Yeah. एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. मैंने सुनील मंच के पॉडकास्ट सुनी थी, उसमें वो कहता है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप में तो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5 years Hmm. जो जो बंदा है ना वो फकीर होता है. Hmm. क्योंकि उसने खुद ही उस ऑफिस को साफ करना है, खुद ही उसने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, खुद ही उसने मार्केटिंग करनी है, उसने उस चीजों के बारे में पढ़ना भी है, उसने कस्टमर्स को भी कांटेक्ट करना है, सब कुछ. आई थिंक इट रियली रियली स्टिक्स टू मी. मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि आई एम स्टिल हैंडलिंग ऑल ऑफ द departments myself. There are no partners. I have just a few 5 to 6 travel guides जो हैं जो मेरे ट्रिप्स पे जाते हैं. उसके अलावा Hmm. I am handling the whole department myself. Okay, that's very impressive. And moving into the fine details of the business. अब again, ये मेरे सवाल होंगे, and I'm sure a lot of people are wondering this. So let's talk business. Let's talk purely in the sense of of your company, and let's just sort of look at at the let's just do an analysis. So my first question is that when it comes to travel and tours, इट्स ऑफ कोर्स एक आपकी सबसे पहली जो इसमें मुझे बैरियर नजर आता है वो ये नजर आता है कि देयर इज एन ऑन सीजन एंड देयर इज एन ऑफ सीजन. ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी you're not going to have an equal number of an equal rate of trips थ्रू आउट द ईयर. एक तो ये मुझे बैरियर इस चीज में नजर आता है. फिर दूसरा मुझे बैरियर इस चीज में नजर आता है, एंड दैट इज समथिंग दैट इज इवन मोर रेलेवेंट टू अस राइट नाउ कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन, is the ever changing prices. Because I remember हमारे ट्रिप पे हम जिस दिन निकले थे उस दिन आई थिंक पेट्रोल 110 रुपए का था, एंड देन द नेक्स्ट डे इट लिटरली हम जब तक
किधर पहुंचे थे, हम नारायण पहुंचे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन हमने उधर से जो, आई रिमेम्बर उधर से जो हमने पेट्रोल भरवाया था, दैट वाज अराउंड आई थिंक 149 रुपीज समथिंग, मतलब इट वाज एन अनबिलीवेबल हाइक, आई डू रिमेम्बर दैट। ये बिल्कुल बिल्कुल। अभी मई की बात है। और फिर उसके हिसाब से सारे आपके जो एक आपने जो अपनी कॉस्टिंग की है, जो जो वो सारा कुछ किया है, ऑल ऑफ दैट नीड्स अ लॉट ऑफ ट्वीकिंग, अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट, एंड जस्ट जनरली just the demand, it just fluctuates throughout the year. So how do you deal with those barriers? And I'll come to other barriers very soon, but like how do you deal with these two specific barriers? Because ye to matlab for a lot of people this would discourage them, this would tell them कि भाई इधर तो कुछ है ही नहीं. So how do you counter them? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन के ऑफ सीजन और ऑन सीजन, जो हम जिसको हम कहते हैं कि पीक सीजन होता है और एक हमारा Hmm. विंटर सीजन होता है इन पाकिस्तान। ओके, सो आई थिंक कि uh, मेजोरिटी तो नहीं, एटलीस्ट 50% तो रेफ्रिजरेटर्स के लिए, एसीज के लिए, फिश शॉप के लिए, सबके लिए एक ऑन सीजन होता है, एक ऑफ सीजन होता है। आई थिंक कि मैंने जो सीखा है, क्योंकि मेरा इसमें इतना ज्यादा रिसर्च नहीं है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ये सीखा है कि जो ऑन सीजन होता है ना, इट रियली रियली अकोमोडेट्स फॉर द ऑफ सीजन मंथ्स टू। अगर आप इसको सही तरह कैश कर लें, यू हैव सच एन इन्फ्लेक्स ऑफ आपका इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है कि यू कैन इजीली इजीली ऑफ सीजन में आप बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर मी इट हैज हैपेंड लास्ट ईयर। mashallah. मेरा ऑन सीजन आई थिंक वाज द परफेक्ट फॉर मी। बहुत ही ज्यादा ज्यादा मेरे ट्रिप्स भी गए, रेवेन्यू भी काफी अच्छी जनरेट हुआ, एंड हमारी बरकतें हैं मुझे बॉस, क्या अपने करें? मुझे अपना वाकई यकीन हो गया कि यार, तो मैंने जब लास्ट ईयर अपना ऑन सीजन किया ना, हम्म. गोइंग फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स टू अगस्त एंड सितंबर के स्टार्ट तक, तो हम्म. जो मुझे रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से, आई थॉट उसमें मुझे बिलीव होना स्टार्ट हुआ कि यार आई कैन रियली परस्यू दिस बिजनेस टू एन इंटरनेशनल लेवल टू। ठीक है, हम्म. पाकिस्तान में ये गैप तो है, ये गैप होता है समर के अंदर, हर हर मुल्क के अंदर होता है कि समर्स के अंदर लोग ज्यादा निकलते हैं। हम्म. गिवन के एक तो समर के अंदर टाइम ज्यादा मिलता है, हम्म. दूसरा ये कि समर में मौसम अच्छा होता है तो निकलते हैं। हम्म. पाकिस्तान में जब से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है, तो हम्म. पाकिस्तान में जब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ है, तो अब विंटर्स में भी लोग निकलते हैं, रोड्स हम्म. बेहतर हैं, रोड्स क्लियर होती हैं। कि वो जो मरी के अंदर हादसा हुआ था, इट वाज हम्म. मेनली बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्नो हम्म. ऑन द रोड। तो उसकी वजह से भी अब बंद हो जाता था कश्मीर, पूरे आई थिंक कि अब वो ऑन सीजन और ऑफ सीजन का थोड़ा सा गैप कम हो रहा है। हम्म. ऑन सीजन तो, ऑफ सीजन के अंदर भी बिजनेस है, यू हैव बिजनेस कि आप बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हो। उसके हम्म. बाद आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो आपकी जो एकदम फ्यूल हाइक होगी या आपकी प्राइस हाइक होगी, दिस इज समथिंग रियली रियली चैलेंजिंग फॉर मी। इवन मैं अभी बैठ के मे ट्रिप्स का, जो आपके सेमेस्टर के एंड के ट्रिप्स हैं, उसको भी फाइनलाइज कर रहा हूँ, मेरे भी वेंडर से बात वगैरह चल रही है। तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्या प्राइस देनी चाहिए। इवन अ हम्म. मंथ बिफोर मुझे नहीं पता कि क्या प्राइस देनी चाहिए। हो सकता है कि पेट्रोल और बढ़ जाए, हो सकता है कि हम्म. डीजल की प्राइस और बढ़ जाए, हो सकता है कि खाने की प्राइस इतनी बढ़ जाए। अब वो मुझे कोई बता रहा था खबरों में कि यार जो आटे का रेट है वो डबल हो रहा है। ठीक है, हम्म. अभी 1200 का थैला है शायद, अब एटलीस्ट 25-2600 का। तो ऑब्वियसली हमारे फूड के भी चार्जेस वगैरह बढ़ेंगे, एंड इससे कस्टमर के ऊपर बहुत बुरा एक इफेक्ट जाता है कि जब हम बिल्कुल एट द वेरी एंड टाइम हम उसे कहते हैं कि यार हमें हम आपकी जो रेट है ना, उन्होंने रजिस्टर भी कर दिया था, हम कहते हैं कि यार आप एक्स्ट्रा 2-3 हजार पे करें या 5 हजार पे करें, गिवन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये कस्टमर के ऊपर एक बड़ा फॉल्स सा ना वो एक इमेज जाता है कि यार ये कंपनी किस तरह किया है, डज नॉट स्टिक विद इट्स पॉलिसीज, ये सब। तो हम्म. पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम इसलिए है कि डॉलर का बहुत बड़ा इफेक्ट है पाकिस्तान के ऊपर। हम्म. और डॉलर की एक डील हो गई तो पेट्रोल जो है 2 से 2.5, ये सब चीजें। बट ये आई थिंक कि पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर ये चैलेंज फेस करना पड़ा है। तो जब जब एज लॉन्ग एज कंपेटिटर्स आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता।
जी जी। हम्म। हम्म। अब इसके अंदर एक और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि एंड दिस इज मतलब फॉर अ लॉट ऑफ पीपल पाकिस्तान इज ऑलवेज बिन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी, बट यू जस्ट मेंशन्ड कि रिसेंटली रोड्स वगैरह बेहतर हुई हैं एंड यू नो टूरिज्म हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड, तो कैन यू एलैबोरेट अ बिट फर्दर अपॉन दैट एज वेल? यार पेंडेमिक के बिल्कुल बाद ना, हम्म। जब लोग घरों में बंद थे, तो इवन के ये पूरे वर्ल्ड इंडेक्स में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान हम्म। कौन नंबर पे आ गया, एक टाइम पे एशिया का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी रहा। उसकी हम्म। वजह ये थी कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान का कल्चर कुछ इस तरह के, यहाँ की घूमने घूमना फिरना लोगों को पसंद है। हम्म। पीपल सेव अ लॉट फॉर मरी के लिए, जो हमारा एक वो बना हुआ है कि मरी वगैरह के लिए जाते हैं लोग। हम्म। अब आप जहां तक बात करो, उस एक तो ये टूरिज्म बहुत ज्यादा हुआ, डेवलप हुआ, नहीं लोग बहुत ज्यादा जाना शुरू हुए। अब लास्ट 6 मंथ से, जब से इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बुरी हो गई है, सबको पता है, वी आर ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग बैंक, फिर दोबारा लोग ठहर गए हैं। लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अपने महीने का 20-25 हज़ार रुपया सेव करके अपनी फैमिली को लेके जा सके। पहली तो हम्म। बात ये, दोबारा कोविड के बाद जो 2 साल थे, बहुत ज्यादा टूरिज्म ने बूस्ट देखा है। अब लास्ट 3-4 मंथ से 6 मंथ से दोबारा हम्म। वही मसला स्टार्ट हो गया है। लोग हम्म। बहुत कम जा रहे हैं, ट्रिप्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है। हम्म। मगर ये बात मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, इट इज गोइंग हम्म। थोड़े स्लोप से जा रही हो, बट ऊपर की तरफ ही जा रही है। हम्म। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, हमारे टॉप क्वालिटी के होटल्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, हर साल बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे रोड्स दोबारा अच्छे हो रहे हैं, हमारे रोड्स के ऊपर मशीनरी दोबारा आ रही है। आई थिंक दिस हैज अ लॉट टू डू विद द मरी इंसिडेंट, वो कोई छोटा इंसिडेंट हम्म। नहीं था। हम्म। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को देखना शुरू किया है कि एटलीस्ट जो हमारे प्राइमरी किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं टूरिस्ट की, हेल्थ की वो सब चीजें, फर्स्ट एड की, वो वहाँ अवेलेबल हों। हम्म। तो एक तो ये कि आपको हर किस्म का खाना मिल जाता है पाकिस्तान में, हर सिटी में आपको ऑलमोस्ट हर किस्म का खाना मिल जाता है, स्पेशली इन द टूरिस्ट जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ हर किस्म की कुजीन अवेलेबल है। हम्म। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाय 2025, जब ये इकोनॉमिक सिचुएशन का ये जो मसला है, जो इन्फ्लेशन वाला जो सेशन चल रहा है, खत्म होगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री स्पेशली ऊपर की तरफ ही जाएगी। मैंने खुद कितने फॉरेनर्स को पाकिस्तान में होस्ट किया है। हम्म। लोग, पीपल आर लिटरली लिटरली वाकई दे आर इंटरेस्टेड इन विजिटिंग पाकिस्तान। हमें बस एक अच्छा सा इमेज पैदा करना है, लोग हम्म। आने के लिए तैयार हैं। लोगों को, पूरे पूरे अमेरिकन को नहीं मिलता कि यार आप हम्म। 2 किलो 2 घंटे की ड्राइव करो तो आपको सरहा मिल जाए, 4 घंटे की ड्राइव करो तो आपको पहाड़ मिल जाए, लेक्स भी हैं यहाँ, सैंड, क्या कहते हैं, सैंड डेजर्ट ड्यून्स। हो रही है, हर चीज हो रही है। तो हम्म। पाकिस्तान की जो जो ज्योग्राफी है ना, इट इज वेरी रिच। यहाँ का हम्म। मौसम बहुत अच्छा है। तो इसलिए पाकिस्तान को अगर कुछ सही कैपिटलाइज करने वाला हो, आई थिंक एंड आई बिलीव कि यार शायद मुझे अल्लाह ताला एक मौका दे कि मैं इसको, पाकिस्तान को प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल पे एक कोई अच्छी सी कंपनी बना के इसको रिप्रेजेंट करूं, हम्म। तो पाकिस्तान का इस मामले में फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। Hmm. Hmm. That's actually very good to hear some positivity in such negative times. And I want to echo what you just said because maybe matlab, we were born in a time where you know terrorism was at its peak. No one wanted to come to Pakistan. जो कुछ भी बनता था जिसके अंदर कोई फॉरेनर आता था या कुछ होता था तो we would all be surprised कि यार I mean why are these people here, aren't they scared for their lives. And of course we've seen ke udhar se to everything has improved as well. I've heard this कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो वीजा एप्लीकेशन और टूरिज्म वाली जो वेबसाइट है, it is a very poorly constructed website. I can probably make a better website उसमें तो और मतलब let's talk about the optics, you know, let's talk about the perception कि आप आना चाहते हो पाकिस्तान। चलो छोड़ दिया जी, कोई हमने लेट्स लीव ये वाली आर्गुमेंट कि अच्छा पीपल थिंक कि पाकिस्तान इज लाइक दिस, मूवीज में इस तरह रिप्रेजेंट होता है, होमलैंड में इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा था, तो पाकिस्तान तो अच्छी जगह नहीं है, उसको हम साइड पे कर देते हैं। कोई फॉरेनर है, समवन सिटिंग इन यूरोप और इन द यूनाइटेड स्टेट्स हु एक्चुअली वांट्स टू कम टू पाकिस्तान, ठीक है। अब वो ऑफ कोर्स पहले गूगल करेगा
कि हमने किस तरह जाना है, हाउ डू वी अप्लाई फॉर द वीज़ा, व्हाट इज़ द टूरिज्म लाइक, एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हाट आर द प्लेसेस टू विजिट, वो सारा कुछ। और उसको एक मतलब एक टूटी-फूटी वेबसाइट मिलती है व्हिच कीप्स क्रैशिंग, ठीक है? और वो सारा कुछ होता है। सो हाउ बिग अ फैक्टर डू यू थिंक दैट इज, in actually ensuring that those people they end up coming to Pakistan? Because I remember बचपन में हम देखते होते थे अमेजिंग इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड के एड्स हम देखते होते थे कि वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। टूरिज्म के एड्स हैं। एग्जैक्टली, वो हम देखते होते थे, एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वी डोंट इवन हैव अ प्रॉपर्ली फंक्शनिंग वेबसाइट। तो now my question to you is कि how do you think this can be combated? हम वही करें कि जी बस गवर्नमेंट को ये चीज़ ठीक करनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, or do you feel that people like you and me, I mean, we can lead efforts as well. We can, sort of volunteer to improve all of these services as well. आपको क्या लगता है? How do we sort of fix all of this? यार पाकिस्तान का ना ये शुरू से ही मसला रहा है कि ये अपनी इमेज डेवलप करने के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता। आई आई बीइंग अ विटनेस ऑफ दिस, कि हमारी जो इमेज है स्पेशली जो नॉर्थ अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप वाली साइड पे जो कंट्रीज है ना, उसके अंदर बहुत बुरी है। हमारे पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ, कोई 6 से 7 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के फॉरेनर्स हैं जो पाकिस्तान आते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मन, ये वाली साइड। हम्म। आप बहुत कम ब्रिटिश ट्रैवलर्स को देखोगे, ठीक हम्म। है। और वो भी मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जो ये स्वीडन, नॉर्वे और ये साइड है, वो इसलिए पाकिस्तान आती है बिकॉज द लाइक क्लाइंबिंग। वो क्लाइंबर्स हैं, वो अपने मुल्क में भी क्लाइंब करते हैं, एंड हम्म। दे मोस्टली कम टू पाकिस्तान फॉर द K2 और इस तरह की चीजें। फेरी मेडोज हाइक कर ली, फेरी मेडोज बेस कैंप तक हम्म। चले गए, नागा बाबा बेस कैंप तक चले गए। लिटरली लिटरली 90% ऑफ ऑल द फॉरेनर्स वो इस काम के लिए आते हैं, वेरी हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग। हम्म। हमारी इमेज है अमेरिकन के, ब्रिटिश के अंदर, इवन हमारे से साउथ अफ्रीकन जो जो हैं, वो भी हमारे नाइजेरियन, आई होस्टेड नाइजेरियन वन, और उसकी भी कोई बहुत अच्छी कोई पाकिस्तान की परसेप्शन नहीं थी। हम्म। हमारी टूरिज्म की वेबसाइट इतनी शायद, आप तो टूरिज्म की बात कर रहे हो, हमारी जो इमिग्रेशन वाली वेबसाइट है दैट इज अ लिटिल लॉट। मैं उस दिन लिंक हो रहा था, लिंक 404 नॉट फाउंड, व्हाट इज दिस यार। आप एटलीस्ट अपनी हम्म। 10-12 किस्म के आपके वीजाज हैं, आप वो तो यार अच्छे तरीके से मैनेज कर लो। एक तो ये, हम्म। मगर एक बात मैं आपको इस मामले में, आपको मैं इस बात अपने लोगों को जरूर करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि जब वो पाकिस्तान में आते हैं, हम्म। लिटरली जब वो पाकिस्तान में आते हैं, तो वो भाई कहते हैं कि यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे, हमने वहाँ जो ब्लॉग्स पढ़े हैं, कमेंट्स पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, हम्म। पाकिस्तान के वो वीडियोस देखी हैं, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं उन इलाके की बात कर रहा हूँ, नॉर्दर्न इंडिया की। और मैंने उनको फ्लैट होटल्स, और मैं रात को उनको पिक करके निकल रहा हूँ, तो रॉन्ग, तो उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा अस्टॉनिशिंग थी। उनकी जान आ गई, मतलब कि मुंह तक जान आ गई कि यार अब ये हो रहा है। तो आई हम्म। आई टोल्ड देम कि दिस इज वेरी इन पाकिस्तान, कोई तोड़ है, कोई लिटरली दे दे सी एवरीथिंग। हम्म। हम्म। आप अमेरिका जाओगे, आप हर चीज को नोटिस करोगे यार, यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, वहां लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे लोगों को ना शायद पता ही नहीं है कि यार हम अगर इंडिविजुअल एफर्ट करेंगे ना, तो हम्म। उसके बाद ही मुल्क ठीक होगा। पान वाला कहता है कि जी मैं पान थूकूंगा, एक पान थूकने से क्या हो जाएगा, बट वो हम्म। एक पान थूकने वाले कितने लोग होते हैं वो भी तो देखो ना। हम्म। इस तरह उल्टी मोटरसाइकिल चला के आपने थोड़ा बचा दिया, बट उसकी वजह से आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, एक क्या एक कल्चर क्या बन रहा है सोसाइटी हम्म। में, वो चीजें। हमारे हुनजई लोग, हमारे गिलगिती लोग, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं, इनको पता है कि किस तरह आपको प्रॉपर फैसिलिटेट करना है, किस तरह वेलकम करना है। दे नो कि यार इन लोगों की क्या डिमांड्स हैं, इन लोगों की क्या नीड्स हैं, इन लोगों की क्या वांट्स हैं, इनको किस तरह का एनवायरनमेंट देना है ताकि सेफ फील करें। ठीक है। और जैसे ही वो इस्लामाबाद क्रॉस करते हैं ऊपर की तरफ फॉरेनर्स, तो फिर वो आके एकदम वो अपने कंफर्ट जोन में वापस आए थे कि अच्छा दीज आर लाइक द बेस्ट एरियाज इन पाकिस्तान, कितना अच्छा हम्म। मौसम है, कितने अच्छे लोग हैं, खाना भी हम्म। अच्छा है, ये सब। नीचे वाली जो हमारी प्लेन एरियाज है ना, यहाँ कोई इतने हालात अच्छे नहीं है। हम्म। आपने कहा था कि इसको कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं, तो सर इसको कॉम्बैट करने का तरीका, एक तो ये कि आप कोई अच्छी मूवमेंट चलाओ, जो हमारे सारे जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं वो कोई करें बात की यार हमारे फॉरेनर से हम बड़े अच्छे किस्म के रेमिटेंसेस ला सकते हैं, बड़ा फॉरेन पैसा ला सकते हैं। तो प्लीज प्लीज एटलीस्ट आपकी जो इमिग्रेशन, आपकी जो ये
फॉरेन अफेयर्स वाली वेबसाइट्स है ना, ये अच्छी होनी चाहिए। Hmm. उसके अलावा प्राइवेटली मैं खुद एज अ कंपनी ये कर सकता हूँ कि आई ग्रो अप, आई टेक द चार्ज, कि अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आने की कोशिश करे, कुछ सोचे भी, तो ही विजिट्स माय वेबसाइट। मैं कुछ इस तरह की एसईओ डेवलप करूँ, कुछ कुछ भी इस तरह का करूँ कि इफ समवन इज कमिंग टू पाकिस्तान, वो मेरे पेज को, मेरी वेबसाइट को खोलें। उससे ये Hmm. होगा कि हम वहाँ इस तरह का एनवायरनमेंट दें, वहाँ इस तरह की 24/7 सर्विस दें, मैसेजिंग सर्विस दें, उनको फैसिलिटेट करें कि दे हैव नो प्रॉब्लम, दे हैव, वो कहते हैं हिचकिचाहट ना उनको पाकिस्तान आने की, Hmm. उनको इस तरह की हम Hmm. हॉस्पिटैलिटी दें। तो आई थिंक दिस इज इन माय माइंड, आई एम नो, अब मैं विद टाइम थोड़ा फंडिंग की तरफ भी जाऊंगा, कुछ इस तरह की चीजें Hmm. भी करूंगा। तो आई थिंक इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 to 3 years दिस विल Hmm. बी ऑन माई एजेंडा कि यार मुझे किस तरह फॉरेनर्स को अपनी तरफ लाना है, अपनी वेबसाइट, अपनी उस तरह की मार्केटिंग वगैरह किस तरह करनी है। Hmm. ठीक है, I mean, again, it's very good to see such a positive outlook on the tourism industry. Again, in considering the times that we're in. अच्छा, अब थोड़ा सा हम let's sort of get off on a tangent. मुझे ये बताएं, how would you, okay, so two questions. How would you compare the nature and the just the way of carrying themselves of the local clients of yours and the international clients, because you've had international clients on your page as well, तो उनके जरा मुझे जो ट्रेडिशंस हैं और जो तरीके हैं उनमें मुझे प्लीज आप अगर डिफरेंस बता सकें, एंड सेकेंडली you know, tell us a funny incident. Tell us an incident that stands out in all of these years of traveling with people and personally as well. कोई funny incident हुआ हो इस सारे टाइम में? ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये, एक ना विजिबल ड्रास्टिक किस्म का डिफरेंस के लोग आपके फॉरेन क्लाइंट्स के अंदर। हम्म. मैंने फॉरेनर से ये देखा है कि दे ट्रेवल वेरी लो। एक तो ये कि बहुत मिनिमलिस्टिक तरीके से चलते हैं, हम्म. ठीक है। बहुत कम लगेज रखते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे तो यहाँ हर दिन के लिए दो दो स्वेटर्स रखते हैं कि भाई इसमें पिक्चर्स लेंगे, इसमें सेल्फीज लेंगे। आई एम, ठीक है, ये कोई, मैं बहुत अजीब अजीब बात कर रहा हूँ शायद, बट ये ऐसे कि मैंने देखा कि यहाँ लोग rather than enjoying the nature, the beauty of the place itself, they are more inclined towards showing others कि यार हम हम्म. कहाँ हैं। उसकी वजह से जो वहाँ उस जगह का खुद एसेंस है ना, वो उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते। मैंने कई बार देखा है कि लोग एक जगह पे जाते हैं, उस जगह को सही तरह एक्सप्लोर करने से के बाद मतलब कि उस, क्या कहते हैं उसको, सही तरह एक्सप्लोर नहीं करते, और उससे पहले उनको होता है कि यार यहाँ पिक्चर ले लें, ये कर लें, वो कर लें। ये हमारे लोकल क्लाइंट्स का मसला है। हम्म. ट्रैवलर कसम से वो फोन ही नहीं यूज करते आपके फॉरेनर्स। वो हम्म. कहते हैं कि हमने सब कुछ अपना काम वगैरह होल्ड पे करके हम रिटायरमेंट एक किस्म की लेके आ गए, हमने बस यहाँ के लोगों के बारे में पूछना है, यहाँ की कल्चर को समझना है, यहाँ की जगह देखनी है, जितनी ज्यादा देख लेंगे उतनी कम है। हम्म. उनको ना कोई इससे ताल्लुक होता है कि यहाँ गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम्म. यहाँ जो है रात को जो है 2 बजे के बाद लाइट क्यों जा रही है, हम्म. यहाँ नाश्ता इतना खराब क्यों है या ऊपर नीचे क्यों है। मेरे साथ ये होता है कि फॉरेनर्स ने सिर्फ ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाए, रात के टाइम कुछ हल्का फुल्का खाया था। उनकी इतनी मिनिमलिस्टिक किस्म की लाइफ होती है। मैं ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हमारे लोकल्स को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बट हम्म. आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर विजिटिंग समवेयर रिमोट इन पाकिस्तान, ठीक हम्म. है। हमारे लोकल क्लाइंट्स का ये मसला होता है कि वो दे वांट द सेम सेम कंफर्ट एज द बेडरूम और द ड्राइंग रूम जब आप जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज भी। हम्म. उनको, मतलब कि मैंने ये देखा है कि उन दोनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमारे लोकल क्लाइंट्स उस जगह को एंजॉय नहीं करते, वहां के लोगों को एंजॉय नहीं करते, वो अपने में रहते हैं। हम्म. आई थिंक दिस इज ये वो एक बहुत मिस आउट करते हैं चीज को। और मेरा ख्याल है कि द पार्ट ऑफ बीइंग यू नो वेरी पैशनेट ट्रैवलिंग इज कि मीटिंग द लोकल पीपल। आप वहाँ की जिंदगियां देखो, आप वहाँ की डिफरेंट चीजें देखो, आप उनके साथ आधा घंटा बैठो, वो आपको 50 ऐसी यूनिक फैक्ट्स बताएंगे उस जगह के बारे में कि आप घूम जाओगे। आप लाहौरी हो खजर, आपको लाहौर के बारे में कितनी डिफरेंट चीजें पता होंगी जो किसी कराची या इस्लामाबाद वाले बंदे को नहीं पता होंगी। बिल्कुल, इसी तरह जब बिल्कुल. आप किसी हुंजा वाले बंदे को जाते हो, हम्म. हुंजा वाले लोगों के पास जाते हो, या किसी नारायण जाते हो, कश्मीर जाते हो, मीट दोज पीपल, वहां के लोगों को समझो, वहां के
वहाँ की कंस्ट्रेंट्स को समझो कि क्या मसला है, फिर ही जाके उस जगह से आपको प्यार होता है, आपको मजा आता है, और आप वाकई जब आप हफ्ते बाद घर आते हो ना, तो आप लाइट हेडेड होते हो, आपको आप फुल एंजॉय कर रहे होते हो, आप आगे अपने काम के लिए भी मोटिवेटेड होते हो। दिस हम्म वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर। हम्म दूसरा क्वेश्चन क्या था? फनी इंसिडेंट, ऐसे ही था। हम्म फनी इंसिडेंट, अच्छा मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। यार फनी इंसिडेंट्स काफी किस्म के हुए हैं। आई रिमेम्बर कि आई टुक अ वेरी ट्रस्टेड ट्रैवल गाइड विद मी, हम्म और ऑन अ ट्रिप, हमारा लम्स का सोसाइटी ट्रिप ही था। हम्म और उस बॉय को रास्ता भूल गया। हम्म रास्ता आज इस तरह भूल गया कि रास्ता तो नहीं भूला, खैर इस तरह हुआ कि हम ना किसी पेट्रोल पंप पे खड़े हुए थे, हम फ्यूल वगैरह भरवा रहे थे। तो अब हुआ ये कि हम फ्यूल वगैरह भरवा रहे थे, आई थॉट कि सारे लोग बस वगैरह में आ चुके हैं, और वो बंदा भी उस टाइम बस में था। एकदम हम्म उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो वॉशरूम चला गया बगैर किसी को बताए। हम आगे निकल गए, हम काफी आगे निकल गए, हम हम्म घंटे की ट्रैवलिंग कर ली, तो फिर हमें किधर से कॉल आई कि यार वो जो दोस्त, वो जो गाइड था ना, वो पीछे रह गया। अब हमारे लिए इतना अच्छा मजे की बात है, उस बंदे के पास फोन भी नहीं था, उस बंदे ने फोन अपना गाड़ी के अंदर छोड़ा हुआ था। उसने भी, यार और वो मेरा क्लोज फ्रेंड भी, नंबर भी नहीं आता था। उस बंदे ने उस घंटे के अंदर मेरा फेसबुक किसी के फोन से खोला। यार हुआ ये था कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ, हम ना खानपुर डैम एक जगह, हम्म तो इस्लाम के पास ना हमने एक जगह से फ्यूलिंग, और हम्म मेरे बगैर मैंने, हम निकल गए। हुआ ये कि उस घंटे बॉय की मुझे कॉल है किसी और नंबर से कि हम्म यार तो वहाँ वो जो पेट्रोल पंप है वहां ही रुक गया था, मैं उधर ही। तो हम्म चला कि उस बॉय के पास मेरा नंबर नहीं था, उसने किसी हम्म का फोन यूज किया, फेसबुक मेरा खोला, हम्म वहां से ही मेरे फ्रेंड्स में से, म्यूचुअल फ्रेंड्स में से कहीं से कुछ जाके, तो किसी का नंबर मेरे से, किसी से मेरा नंबर मांगा, और काफी उसने हैसल की, घंटा उसे लग गया ये सब चीजों में, और उसने फिर मुझे कॉल की। हम्म खैर फिर होना क्या था कि हमने किसी बंदे को वापस भेजा, वो उस बंदे को लेके आया। दिस नॉट अ फनी इंसिडेंट, मेरा ख्याल है कि काफी और फनी इंसिडेंट मेरे साथ ट्रिप पे हुए होंगे, मुझे याद नहीं आ रहे। हम्म बट ना, ट्रिप जो ट्रैवल एजेंसी है ना, इट इज अ बिग एक्सपोजर फॉर यू। हम्म आप 100 किस्म के लोगों से मिलते हो, उनके 100 किस्म के नीड्स होते हैं, 100 किस्म के नखरे होते हैं, ठीक हम्म है। और गिवन कि आप वो रात को बैठ के, जिस तरह हमने किया था कि हम रात को बैठ के डीप टॉक्स कर रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे, आई थिंक कि वो जो टाइम है ना, हम्म वो मेरे लिए सबसे, मेरा सबसे फेवरेट टाइम है। हम्म उसमें जो लोगों के एक्सपीरियंसेस, क्या कहते हैं उससे, जो हम एक्सपीरियंसेस जो हम सीखते हैं, जो सुनते हैं ना, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कैच आई कैन हैव फ्रॉम दिस, दिस बिजनेस। क्या मजा आता है लोगों की कहानियां सुन के, बिल्कुल। लोगों के किस तरह के, वो हम्म अजीब ही मजा है। तो बिल्कुल। हाँ। और मैं आपको मतलब कंटिन्यूइंग इन अ वेरी सिमिलर वेन, द होल कंसेप्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट इज आल्सो अराउंड दैट, टू गेट दीज हाँ। स्टोरीज ऑन द रिकॉर्ड। एंड बिकॉज आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन आर्काइविंग, कि यार आज 2023 के 20 ईयर ओल्ड्स कैसे थे, ठीक है, 2050 में कोई जानना चाहे तो उसके पास कुछ हो। बिकॉज आई ऑलवेज स्ट्रगल विद दिस, आई वॉन्ट टू नो वट द पीपल वर लाइक इन द 90s, आई वॉन्ट टू नो वट द यूनिवर्सिटी लाइफ वॉज लाइक इन द अर्ली 2000s, बिकॉज आप कहानियां सुनते हो सारा कुछ, बट यू कांट रियली गो बैक इन टाइम। सो दिस इज समथिंग ऑफ अ टाइम कैप्सूल इज वेल। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्कर्दू में आई ऑल्सो रिमेंबर कि हमें जो होटल स्टाफ था, we spent literally hours sitting with them one night. I think it was the second last day, the last night of our trip, और हम उनसे बातें कर रहे थे, and it was just excellent. So Sarim, before we end the podcast, I just want to know कि what are the upcoming फितूर के projects? अब आप कहीं जा रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं in the coming months, and then what's the plan for the summers? यार हमारे वीकली ट्रिप्स जाते हैं, जो कि ऑन सीजन या ऑफ सीजन हो, हमारे जाते ही जाते हैं। Hmm. लोकेशन चेंज होती रहती है, क्योंकि कई कई लोकेशन की certain जो है वो वर्थ विजिटिंग होती हैं, कई नहीं होती, ठीक है। Hmm. तो इस तरह हमारी लोकेशन चेंज होती रहती है, हमारे हर हफ्ते ट्रिप्स जाते रहते हैं, हम उसको अपने पेज के ऊपर एडवर्टाइज हल्का फुल्का करते रहते हैं, हमारे और जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसमें भी करते Hmm. रहते हैं, हमारे जाते रहते हैं। हमारा जो ये जो मे ट्रिप्स और जो समर ट्रिप्स होते हैं ना, ये हमारा एक बिग प्रोजेक्ट होता है। Hmm. I'm working on that right now. Inshallah, in 2 to 3 days, everything would be, Hmm. published, advertised, everything on a social media handles, on a groups वगैरह सब कुछ। एक तो वो समर ट्रिप्स। दूसरा है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो ये हैं कि वी आर एमिंग टू
वर्क विद कॉर्पोरेट कंपनीज, कॉर्पोरेट जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, जो आपकी सर्जिकल कंपनीज होती हैं, सर्जिकल नहीं, जो आपकी मेडिसिन कंपनीज होती हैं, और इस तरह की कंपनीज, हमारे पास दो तीन इस तरह के हैं भी, हम और लोग गैदर करना चाह रहे Hmm. हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हम समर कैंप्स कराएं। समर Hmm. कैंप्स इस तरह के एज 15 to 16 वाले, जो 14 to 16 फाइन करना है, उन बच्चों को हम, ये जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, बीकन हाउस, एलजीएस वगैरह, इनको हम अप्रोच करें, और फिर 2 वीक्स का एक समर कैंप रखें किसी भी अच्छी जगह पे। अच्छा, तो हमारा प्लान है कि हम ये एलजीएस, बीकन हाउस और ये जो थोड़े से अच्छे स्कूल्स हैं लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, इनको अप्रोच करें और इनके बच्चों को एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर अच्छी किस्म की एक्टिविटीज दें, Hmm. किसी भी अच्छे एरिया में। अच्छा एक बोर्डिंग सा, अच्छे से खुला सा एक हो, अपना होटल हो, जहाँ लॉन्स वगैरह हो, जहाँ इनको हम डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज, म्यूजिक, योगा वगैरह, स्विमिंग तो नहीं हो सकती, इस तरह की डिफरेंट कराएं Hmm. कि उनके लिए एक अच्छा एक रिट्रीट बन जाए एट द एंड ऑफ द ईयर। एक Hmm. ये। दूसरा ये कि आई वांट टू गो फॉरेन। हमारी वेबसाइट इन द इन द डेवलपमेंट फेज है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दो महीने तक। हमारा वैसे टेंटेटिव डेट जो है दैट इज जुलाई एंड, वो बन जाए तो वी वांट टू मार्केट हैवीली इन इन द इंटरनेशनल इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से। Hmm. उसके लिए हमें एक सोशल एक स्ट्रक्चर तो बनाने की जरूरत है। आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट। हमारा फंडिंग राउंड भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा थोड़ा जल्दी। तो ये हमारा प्लान है कि पाकिस्तान, फितूर पाकिस्तान को एक पाकिस्तान लेवल, नेशनल लेवल एक आइडेंटिटी है पाकिस्तान के लिए। एक तो ये, दूसरा ये कि हम इस तरह ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी काफी फायदा होगा। दिस इज इन द वर्क्स, अब देखते हैं कि इसका क्या बनता है। ठीक है, I wish you all the best in your endeavors. And Sarim, thank you so much for your time. Thank you so much for joining us. This was a great conversation, and I'm sure it's going to be very informational for everyone watching. Thank you for tuning in, and we will see you in the next episode.